Union Home Minister Amit Shah today said that the centre is focused on expediting its policy of Act East, Act Fast and Act First as far as development and progress of the Northeast is concerned. Addressing the NEC plenary session in Agartala, Amit Shah said that the region has made tremendous progress due to Prime Minister Narendra Modi's vision. Shah said that the region has experienced large-scale development due to the steps taken by the centre for bringing permanent peace. Shah affirmed that Prime Minister Narendra Modi has always strived to expedite the growth rate of the Northeast and maintained that safeguarding the identity and culture of the region has always been a priority of the government. Besides, Amit Shah also stressed on promotion of organic products of the Northeast at the global level. The Union Home Minister also maintained that government has its focus on creating an industrial ecosystem in the region, as he said that investors have always sought to venture into the Northeast. Shah said that the government is moving ahead with a multi-dimensional approach so that the growth rate and progress can be expedited with each passing day. Besides, the Union Home Minister also stressed on the fact that the government is committed to wipe out the menace of drugs from the entire nation. Shah said that the Northeast has a key role to play in this regard. The Union Home Minister also emphasized on strengthening the police force in the Northeast. Amit Shah also assured that the centre will fully assist the states financially to take forward the development agenda. The Union Home Minister also proposed for creation of large ponds to tackle floods in the region. Shah in this regard urged the other Northeast states as well as the NEC to adopt a SAMS model. Yes, Amit Shah, as I was saying, viewers, in this regard, urged the other Northeast states as well as the NEC to adopt a SAMS model of dealing with floods by creating large ponds, which he said will go a long way in addressing issues of irrigation for farmers, drinking water, besides others. भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर की संस्कृति को भी संरक्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे ज्यादा अगर पूर्वोत्तर की भाषाओं को 8वीं अनुसूची में समाने का काम हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। हमने भी विभिन्न समझौते जो किए उसमें पूर्वोत्तर की अलग अलग बोलियों को ताकत देना, उसको संजोना और प्राथमिक शिक्षा कम से कम पूर्वोत्तर की भाषा में हो, इसके लिए हमने बड़ा आग्रह रखा है। और मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा फायदा हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखने में होगा। अब समय आ गया है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को पूर्वोत्तर के विकास से एक बिग पुश देने का समय आ गया है और इसके लिए एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट, ये तीनों मंत्र जो हमें दिए गए हैं, ये तीनों मंत्र को चरितार्थ करने का काम डोनर मंत्रालय बखूबी कर रहा है, एनईसी भी कर रही है। कनेक्टिविटी अब प्रॉब्लम नहीं रही और विश्व के साथ कनेक्टिविटी भी थोड़े समय के बाद प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। बांग्लादेश के एन्क्लेव्स एक्सचेंज के बाद पूर्वोत्तर को दुनिया के साथ जोड़ने का हमारा लक्ष्य बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। पूर्वोत्तर में एक औद्योगिक इकोसिस्टम इससे दृढ़ होगी और पूरी दुनिया का बाजार यहां पर निवेश करने वालों के लिए खुलेगा और इसके लिए हर राज्य ने भी अपने प्रयास मजबूत करने पड़ेंगे। भारत सरकार भी सभी इन्वेस्टरों को पूर्वोत्तर की ओर आने के लिए प्रेरित करती है। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण की इकोसिस्टम के विकास के लिए 3 सेमीकंडक्टर यूनिट नॉर्थ ईस्ट में स्थापना करने का निर्णय लिया। इनमें से एक इकाई टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
लगभग 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से आसाम में आने वाली है। वो अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और इसके साथ साथ 20,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 60,000 अप्रत्यक्ष रोजगार खड़े होंगे। इस फ्यूचर पोटेंशियल को ध्यान में रखकर भारत सरकार का शिक्षा विभाग नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटियों के साथ बैठकर इसी प्रकार के शिक्षा से लैस, ज्ञान से लैस युवा तैयार हो, इसके लिए भी कोर्स की निर्मित कर रहा है, जिससे जो जॉब जनरेट होंगे इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को मिले। ये जो इकाइयां डाउनस्ट्रीम ऑटोमेटिव के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सहायभूत होगी। सुरक्षा के क्षेत्र में हमने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यहां पर अपनाया है। हर राज्य की एक विशिष्ट रणनीति बनाकर हम 10 साल में आगे बढ़े और इसका परिणाम है कि पुलिस, आर्मी, असम राइफल और केंद्रीय पुलिस बल, ये सब ने इकट्ठा मिलकर यहां पर एक बहुत अच्छी व्यवस्था करने में सफलता पाई है, जिसके चलते हिंसक घटनाओं में 31% कमी और नागरिकों की मृत्यु में 86% की कमी ये 10 साल में हमने सिद्ध की है। लगभग 10,574 विद्रोही सरेंडर हुए हैं और कई सारे समझौते किए। इसके कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्थापित करने का हमें बहुत सफलता मिली है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ इसके पहले की एनईसी की बैठक में मैंने कहा था, दूध, सब्जी, अंडे, मछली और मांस, इसमें स्वावलंबन लाए बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है। यही चीजें हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, दूध, सब्जी, अंडे, मांस, यही चीजें हैं जो व्यक्ति के विकास का कारण बन सकती हैं। और जब तक हर व्यक्ति को हम संपन्न नहीं कर सकते, संपन्न नॉर्थ ईस्ट की कल्पना बेमानी है। नेचुरल ईस्ट सुखस्य मूल धर्म, धर्मस्य मूल अर्थ, ये महान चाणक्य का उद्घोषित सिद्धांत है। इसका मतलब व्यक्ति से जोड़कर नहीं है, राष्ट्र से जोड़कर है। कौन से राज्य और राष्ट्र सुख और शांति से जी सकते हैं, तो वो ही राज्य और राष्ट्र सुख और शांति से जी सकते हैं जिनके नागरिक धर्म से युक्त हो। धर्म यहां रिलीजन के रेफरेंस में नहीं है, धर्म यहां कर्तव्य के रेफरेंस में। जिस राष्ट्र के नागरिक कर्तव्य पथ पर चलते हो, वो ही राष्ट्र सुख और शांति से रह सकता है। मगर उन्होंने आगे भी एक सूत्र कहा है, धर्मस्य मूलम सुख अर्थ। तो किस राष्ट्र के नागरिक कर्तव्य पथ पर चल सकते हैं, तो उन्होंने कहा है वही राज्य के नागरिक कर्तव्य पथ पर चल सकते हैं जो सुख और अर्थ से, मतलब धन से संपन्न हो, उन पर आर्थिक कोई आपत्ति न हो। तो एक प्रकार से हर एक राष्ट्र और राज्य की बेसिक जरूरियात है कि उसका हर नागरिक अर्थ से संपन्न हो और अपना जीवन यापन शांति से कर सकता हो। ये चाणक्य का सूत्र, चाणक्य के अर्थशास्त्र के बेसिक सिद्धांतों में से एक है। और आज यहां पर हम सब उत्तर प्रदेश से बड़े भूभाग
नॉर्थ ईस्ट जिसकी संभावनाओं में हम एक्सप्लोर करने में बहुत लेट हो गए हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के आर्थिक रूप से संपन्न बनने की चिंता के लिए। अभी सिंधिया जी ने बताया, मोदी जी के 10 साल के अंदर हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंची और 2027 में हमारा संकल्प और निश्चित रूप से होने वाला है कि हम 5वें नंबर से संसार की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। मगर ये पर्याप्त है क्या? किसी भी राज्य के लिए, देश के लिए पर्याप्त है क्या? ये पर्याप्त नहीं। छोटे छोटे जो 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ की आबादी वाले देश है, उसके लिए पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि वहां जीडीपी बढ़ना, अर्थव्यवस्था बढ़ना सीधा समविकास की ओर जाता है, क्योंकि आबादी छोटी। मगर 140 करोड़ की जनसंख्या और इतनी विषम भौगोलिक स्थिति वाले देश के लिए अर्थतंत्र का बढ़ावे के साथ साथ हर क्षेत्र से मतलब है राज्यों का समूह, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट है, हर राज्य, नॉर्थ ईस्ट का हर एक राज्य, हर गांव और हर व्यक्ति, उसका आर्थिक विकास ही देश के आर्थिक विकास का सही मायना हो सकता है। जब तक देश के 140 करोड़ के लोगों के आर्थिक विकास को हम परिपूर्ण नहीं कर सकते, तब तक हम विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते। विकसित राष्ट्र की कल्पना ही वही है, हर व्यक्ति अपने और अपने परिवार के पालन करने में सक्षम, हर व्यक्ति के पास बेसिक सुविधाएं हो और हर व्यक्ति देश के विकास में कंट्रीब्यूट करता हो, वो ही राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन सकता है। और मित्रों, जब उत्तर प्रदेश से कई बड़े भूभाग वाला नॉर्थ ईस्ट, यहां पर आर्थिक संपन्नता कम हो, विकास कम हो, लोगों में सुख शांति न हो, तो भारत कैसे विकसित राष्ट्र बन सकता है? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक संकल्पना की कि जब देश आजादी की शताब्दी मनाता होगा 15 अगस्त 2047 को, उस वक्त पूरे संसार के अंदर हर क्षेत्र में भारत नंबर 1 होगा और भारत पूर्ण विकसित देश। जब पूर्ण विकसित देश बनना है, तब हर क्षेत्र, हर राज्य और हर व्यक्ति इसके सुख की चिंता करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी, तभी जाकर 2047 में हम विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। यहाँ पर आज की कॉन्क्लेव का विषय अर्थ जगत से जुड़े लोग ऐसा निकालेंगे कि यहाँ बिजनेस पोटेंशियल क्या है, इसके लिए रखा है। मगर मैं आज आप सभी को कहने आया हूं कि आज की कॉन्क्लेव का विषय आपका फोकस बढ़ाने के लिए तो है ही, परंतु साथ में 10 वर्ष पहले के नॉर्थ ईस्ट और आज के नॉर्थ ईस्ट की अंतर की जानकारी आपको मिले, इसके लिए भी। 10 साल पहले यहाँ 200 से ज्यादा जनजातीय समूह, अनेक आतंकवादी ग्रुप, हर राज्य में हथियारी ग्रुप और सैकड़ों आतंकवादी घटनाओं से एक क्षेत्र लैस है। और आज 10 वर्ष के बाद मोदी जी के 10 साल के शासन में यहाँ पर हिंसा में 71% की कमी आई है और नागरिकों की मृत्यु में 86%। 20,000 से ज्यादा हथियारी लोग सरेंडर कर चुके हैं, मेन स्ट्रीम में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पर अब ये एक्सप्लोर किए बगैर का सभी पोटेंशियल देश के विकास के लिए आप लोगों का राह देख रहा है। और मैं यहाँ पर जब बैंकिंग वाले होते हैं
बैंक के लोग होते हैं, तब वो आंकड़ों को ही देखते हैं, मुनाफे को ही देखते हैं, ग्रोथ की पोटेंशियलिटी को ही देखते हैं और रिस्क फैक्टर का ही काउंटिंग करते हैं। ये सब तो करिए, इसमें अब कोई ज्यादा आपत्ति नहीं मिलेगी, सब कुछ यहाँ मिलेगा, परंतु नॉर्थ ईस्ट का विकास हम सबकी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। ये समझकर कोई भी देश अगर आगे बढ़ना है तो सम विकास होना चाहिए। ये मूल सिद्धांत को हमारे बैंकर्स को भी अपनाना पड़ेगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है, संवेदनापूर्ण अनुरोध है, कि नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ बिजनेस पोटेंशियल और मुनाफे की दृष्टि से मत देखिए, नॉर्थ ईस्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी की दृष्टि से देखिए। आपकी जिम्मेदारी है नॉर्थ ईस्ट को आगे। और यहाँ पर आज अनेक प्रकार का पोटेंशियल पड़ा है, टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, एग्रीकल्चर से लेकर एंटरप्रेन्योर तक, फाइनेंस से लेकर फिशरीज तक और बैंकिंग से लेकर विदेश तक, हर चीज के लिए फूट फूट कर यहाँ पोटेंशियल बढ़ा हुआ है। और मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं, मेरे शब्दों पर भरोसा रखना, मैं नाप तोल कर बोलने वाला व्यक्ति हूं। हमारा नॉर्थ ईस्ट विकसित भारत के निर्माण का गेटवे बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पोटेंशियल। आने वाले 25 वर्ष में नॉर्थ ईस्ट के वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास दोनों दृष्टि से भारत का गेटवे बनेगा, नए कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित करेगा। आने वाले 25 साल नॉर्थ ईस्ट भारत का विकास का गेटवे बनेगा, पूरे देश का विश्वास का गेटवे बनेगा। और अब मैं कह सकता हूं, नॉर्थ ईस्ट निर्यात का भी गेटवे बनने वाला है। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी नॉर्थ ईस्ट पूरे रिकॉर्ड तोड़ेगा, इसका मुझे बहुत विश्वास। और आज जब आप सब लोग नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स कॉन्क्लेव 2024 के लिए एकत्रित हुए हैं, तो इस जीवंत क्षेत्र के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आपकी सहायता चाहिए और आपका संवेदनशील नजरिया चाहिए। मित्रों, कॉन्क्लेव का यहाँ पर 3 सत्र हुए हैं, 2 हुए, तीसरा शायद अभी होने वाला है। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर आपने एक सत्र किया, कृषि और एमएसएमई के क्षेत्रों पर ऋण देने के लिए किया, और तीसरा क्षेत्र की डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम को इंप्रूव करने के लिए आप सत्र करेंगे। परंतु मैं आज यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ, बैंकिंग सेक्रेटरी भी यहाँ पर उपस्थित है, रिजर्व बैंक के भी लोग उपस्थित हैं और देश की सभी प्रमुख बैंक के प्रतिनिधि भी। क्या नॉर्थ ईस्ट के अंदर फाइनेंस के लिए, किसी भी प्रकार का फाइनेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, एग्रीकल्चर का हो, एमएसएमई का हो या पर्सनल लोन का, इसके लिए पैरामीटर्स आपने जो बनाए हैं, रिजर्व बैंक ने गाइडलाइन बनाई है, नाबार्ड ने जो गाइडलाइन बनाई है, वो पूरे देश की गाइडलाइन, वही गाइडलाइन नॉर्थ ईस्ट की होनी चाहिए क्या? कैसे कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट की और पूरे देश की गाइडलाइन एक नहीं हो सकती।